Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you can prepare for any kind of interviews, and this video is related to the interviews of MTech and MTech research, which is also called MS, and MS and PhD interviews are combined. So it is in IISc Bangalore. MTech का पहले ही फॉर्म आ गया था, MTech का पहले ही नोटिफिकेशंस आपको आ गए थे, कॉल आ गई थी, एंड yesterday the calls have started pouring in for MS, जिसको MTech research भी बोलते हैं IISc Bangalore में. Is there any difference between the interview of MTech and MTech research in IISc Bangalore? Is the weightage of interview different for MTech and MTech research? Is MTech research offering me the same kind of career opportunities as MTech does, or better in MS or better in MTech? What is there? Should I go for the interview or not, and how should I prepare? This entire this particular video is related to that only. So friends, in case you have got the call and you still not started preparation for the interview, let me tell you, you are very close to final selection. Don't lose it. Prepare with the mentors of Yourpedia. Yourpedia is the dedicated platform which is for the last now 7-8 years catering to the requirements of the students for the preparation of interviews, GDs, GTs, and this is a professional platform where you can prepare very thoroughly for this. Now coming to this IISc Bangalore. This is related to the interviews of MTech and MTech research. MTech research and PhD interviews are common. The moment you go to some interview with the professor, they are going to ask you whether you want MTech research. MTech research को MS भी बोलते हैं, MTech research या PhD में आपको क्यों करना है, और ये सारे इंटरव्यूज आपके होंगे अप्रैल और मई 2025 में. एंड नीडलेस टू से, अगर आपको कॉल आया है एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद योरपीडिया, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. सो IISc Bangalore, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, और इंडिया का टॉप नंबर 1, जहाँ पे यूजी नहीं होता, जहाँ पे ओनली पीजी होता है. पीजी इज द मेन प्रोडक्ट. तो अगर इंडिया में कहीं पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए बना है, बीटेक के लिए नहीं बना है, वो IISc Bangalore है. IITs में आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती. IITs में आपको सेकेंड सिटीजन की फीलिंग आती है. नॉर्मली जब आप बीटेक वहाँ पे देखोगे तो बीटेक के ऊपर प्रोफेसर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, उनको मेन प्रोडक्ट मानते हैं, एमटेक को बाई प्रोडक्ट मानते हैं, एंड पीएचडी को वेस्ट प्रोडक्ट मानते हैं. मैंने कई बार इस पे वीडियो भी बनाया है कि इस परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एज अ स्टूडेंट मैंने ये वहाँ पे देखा भी है. मैं 10 साल स्पेंड किए हैं आईआईटी सिस्टम के अंदर, मैंने उसको फील किया है, देखा है, और ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है. और आईआईटीज़ को प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आईआईटी शुड नॉट फ्लॉन्ट ओनली कि इतने करोड़ का पैकेज इस बीटेक वाले को लग गया, इस एमटेक वाले को लग गया. नॉट दैट. आईआईटी शुड फ्लॉन्ट कि मेरी ये रिसर्च है, इसमें मेरे को पेटेंट मिल गया और इसके लिए मेरे को नोबेल प्राइज मिल गया. आज तक हमें नहीं मिला. We should think of that. IISc Bangalore is the institute where focus is entirely on the research and on masters. So masters are the main product of IISc Bangalore. अब ये है, अगर आप देखोगे IISc Bangalore की साइट पे, तो वहाँ पे MTech के लिए जो लिखा हुआ है 30% वेटेज है इंटरव्यू में. दैट मीन्स 70% वेटेज इज फॉर द गेट एंड 30% वेटेज इज फॉर द इंटरव्यू. नॉट एवरी डिपार्टमेंट हैज इंटरव्यू. देर आर डिपार्टमेंट्स इन IISc Bangalore where 100% सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर. आपको इंटरव्यू नहीं देना. लेकिन interdisciplinary departments, most of the interdisciplinary departments, that means departments in which different branch of students can join, mechanical be, electrical be, like smart manufacturing, mobility and logistics, all these departments are interdisciplinary. वहाँ पे interview है and weightage is 30%. Now there are so many departments, so as it is clearly mentioned, कहाँ पे आपका 100% weightage है gate score का, no interview, these are the departments. 30% interview, they are the departments. So in some departments interview is 30%, and the result will be displayed through COAP, that is Common Offer Acceptance Portal. यहाँ पे आपके MTech का रिजल्ट आएगा. Many students ask, सर रिजल्ट COAP पे आएगा या अदरवाइज आएगा? और अब चलते हैं MTech रिसर्च की तरफ. MTech रिसर्च और PhD का जो इंटरव्यू है वो कॉमन होता है. आप प्रोफेसर आपसे पूछेगा कि आप MTech करना है या PhD करना है. नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को PhD के लिए एडवाइज नहीं करता, बिकॉज IISc Bangalore में PhD में डायरेक्ट PhD में 7-8 साल लग सकता है, तो मैं एडवाइज नहीं करता. MS के लिए मैं एडवाइज करता हूं कि आप MS के लिए जा सकते हैं. 100% वेटेज इंटरव्यू का है MS के लिए. अगर कॉल आ गया तो 100% सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे है. क्लियरली मेंशन किया हुआ है IISc Bangalore ने कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं MTech MS को लेके. MTech रिसर्च को ही MS बोलते हैं. IISc Bangalore के अंदर MS नहीं होता, MTech रिसर्च बोलते हैं. IIT मद्रास में इसको MS बोल देते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नॉर्मली आपको MTech में कॉल आती है अगर गेट स्कोर अच्छा है, CGPA चाहे आपका 7 से कम भी है. यहाँ जब तक CGPA तुम्हारा हाई नहीं है तुम्हें कॉल नहीं आएगा.
गेट स्कोर उनको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं आपके एकेडमिक स्कॉलेस्टिक अचीवमेंट को, कि आपने CGPA कितना अचीव किया, आपके कॉलेज में आपके करिकुलम कैसा था। ये 2 साल का होता है, ये आपका 2 से 3.5 साल के बीच में हो सकता है, मान के चलो 2.5 साल। यही पॉइंट को स्टूडेंट गलत मानते हैं और यही पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सब 6 महीने और लगेंगे, एंड आई एम सरप्राइज के वो स्टूडेंट जो 5-6 साल घर बैठ के तैयारी करते रहते हैं वो वेस्ट कर देते हैं अपना ईयर्स। 6 महीने IISc जैसी इंस्टीट्यूट में स्पेंड करने के लिए बोलते हैं वो हमारा वेस्टेज है, हमें तो जल्दी IISc से बाहर निकलना है। IISc इज नॉट अ जेल, IISc इज द इंस्टीट्यूट जहां जितना टाइम आप लगाओगे, पर्पसफुल टाइम, नॉट वेस्ट टाइम, पर्पसफुल टाइम जितना लगाओगे फ्रेंड्स, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्रियल स्किल बढ़ेगी, आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ेगी, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट जॉब्स, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ हायर एजुकेशनल कोर्सेज। सो दिस इज द मेन पॉइंट वेयर स्टूडेंट्स थिंक that MS may not be very good option, and second point can be this कि गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि अगर कम गेट पे कॉल आ रहा है तो अच्छा नहीं है। वो हमारी परसेप्शन है कि अगर कॉल आपको कम गेट पे आ रहा है इसलिए शायद MS अच्छा नहीं है। आई टेल यू वन थिंग, यू आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ IIT और IISc हु इज डूइंग MS और MTech, उससे पूछो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसका आंसर होगा दोनों सेम है, दोनों में अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये आंसर है IIT के स्टूडेंट्स का। IIT के बाहर बैठा कोई कुछ बोल रहा है, डोंट लिसन टू हिम। नाउ फोकस जो है एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर ज़्यादा कम यहाँ पे ज़्यादा होता है, स्किल एनहांसमेंट पे ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे होते हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो। यहाँ प्रोफेसर का इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसको केवल मिनी PhD इसीलिए बोल देते हैं। यहाँ प्रोफेसर से इंटरेक्शन कम है, प्लेसमेंट्स यहाँ अच्छी हैं, यहाँ भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं बिकॉज आपका ज़्यादा टाइम मिलता है स्किल एनहांस करने को, और ज़्यादा कंपनीज में आप बैठ सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे हैं। और यहाँ पे फोकस प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बेसिकली PhD के ऊपर, जो बेसिकली फोकस ऑन प्रोजेक्ट फॉर PhD वो बाद में होता है, उतना नहीं होता है। यहाँ PhD अब्रॉड के लिए बहुत ज़्यादा है। बेसिकली फोकस जो है वो आपका PhD प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे है। ये PhD अब्रॉड से करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अगर आपको बाहर से करनी है। इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंटरव्यू हमेशा होता है। जहां भी MS कोर्स है वहाँ इंटरव्यू होगा, 100% वेटेज इंटरव्यू की है। और इंटरव्यू में वो आपसे रिसर्च के बारे में भी, जो आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो उससे पूछेगा। इसलिए IIT मद्रास ने आपसे रिसर्च स्टेटमेंट भी मंगवाते हैं, वो इसके लिए होती हैं, MTech के लिए नहीं होती। अब उसके बाद आपको MTech और MS, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, इसको जरूर देख लेना, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपने जो प्रिपरेशन इंटरव्यू की करनी है वो कैसे करनी है, मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं। आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं तैयार करने हैं, आपको वही सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं जिससे कॉल आया है। लेट अस से इफ यू गॉट कॉल फॉर MS फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू नीड नॉट टू प्रिपेयर एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आस्क योरसेल्फ इन विच एरिया वुड यू लाइक टू डू योर हायर एजुकेशन। वुड यू लाइक टू गो इन डिजाइन और थर्मल और इंडस्ट्रियल, व्हाट? You just prepare those topics. Do not prepare entire mechanical engineering for interview. Prepare only that part. This interview of MTech MS are different from interview of PSUs. When you go for PSUs, you need to prepare more subjects. But when you go for MTech MS, you need to prepare only those subjects in which you want to do MTech. If you are going for Masters of Management, just prepare subjects relevant for Masters of Management. If you are going for smart manufacturing, you are going for mobility and logistics, prepare those subjects which are relevant for that. And your PDA has given you a lot of documents telling you which subjects are relevant for your preparation. So prepare only some subjects. Mathematics, surely you should prepare. Other IITs may not ask mathematics, but IISc will ask you mathematics. BTech ka project and internship they ask you. Always you keep in mind that you need to prepare your subjects which are favorite subjects. Please राइट वाइल प्रिपेयरिंग, जब आप तैयारी करेंगे इंटरव्यू की तो लिख लिख के तैयारी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक स्विमिंग, लाइक राइडिंग, इंटरव्यू इज ऑल्सो एन आर्ट. इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, यू नीड टू गिव इंटरव्यू, एंड Yourpedia offers you multiple snaps and mocks opportunity. This is the only platform which gives you lot of opportunities for mocks and snaps, right? So go through the website of particular department. Suppose you got a call from Masters of Management. Go to the website of Masters of Management of IISc Bangalore. See what research professors are doing. As I told you, in MTech research, they are going to ask you in which area do you want to do research. Sir, supply chain. Okay, what in supply chain? Sir, in the logistics, I want to work in the field of data analytics and how to, do properly this forecasting. So, I'm to work on the field of optimization of the inventory through proper forecasting, use of AI. So, you need to tell something on the basis of what research is going on there. So you need to tell that, right?
And mentors of your PDA will be asking you a lot of questions, and these are a lot of learning content available on the panel of your PDA. Marathon videos are there. Many times students ask, सर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हम NPTEL के लेक्चर सुने, क्या करें, बुक्स पढ़ें, क्या करें? सबसे पहले मैराथन वीडियो सुन लो जो योर PDA ने बनाया है। योर PDA के पास अगर मैराथन है तो उसको सुनो, उसके बाद आपने जो करना है करो, लेकिन वो आप पहले वो डॉक्यूमेंट जो योर PDA देता है उसको गो थ्रू कर लो। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव स्टिल नॉट स्टार्टेड गोइंग फॉर इंटरव्यूज, गेट इन टच विद गुरविंदर सर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। ये एक डेडिकेटेड चैनल है फ्रेंड्स योर PDA का, इसका नाम है योर PDA मॉक इंटरव्यू GDGT। डेडिकेटेड चैनल क्रिएट किया है कपल ऑफ ईयर्स बैक ओनली फॉर मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल। देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरव्यूज, यू नो, IIC बेंगलोर के अर्थ साइंस के इंटरव्यू एंड IIC बेंगलोर के मैथमेटिक्स के इंटरव्यू। सो ऑन दिस चैनल यू विल गेट ऑल इंटरव्यूज, प्लीज स्टार्ट वॉचिंग इट। दिस वेरी चैनल द योर PDA एजुकेशन इज अनदर मेन चैनल। वहाँ पे आपको मैराथन्स मिलेंगे, लाइक मैराथन्स ऑफ डिफरेंट टीचर्स यू विल गेट इट एंड मोर थिंग्स यू विल गेट इट। सो प्लीज प्रिपेयर फ्रॉम देयर ऑल्सो। So MTech research interviews have started coming for all of you. Surely you will get call this season. Please try to convert that, prepare for the interview and try to convert that into selection. All the very best friends. Thank you.